students. So let's continue with the topic, that is mole concept. So here in this video you will be going to learn the mole concept in terms of volume. In previous video you have learned the mole concept in terms of mass, how to find the mass of 1 mole of any substance, which is equals to the molecular mass of that substance, and in order to find the number of particles in 1 mole of any substance. So we all know that number of particles in 1 mole of any substance is equals to 6.022 into 10 to the power 23 molecules, right? So in this video you will be going to learn the mole concept in terms of volumes. Okay, नोट हमेशा याद रखना ये चीज कि मोल concept in terms of volume works only for gases, not for solids and liquids. Okay, it works only for gases. ये चीज याद रखना कि मोल concept in terms of mass, तो बताइए molecular mass of that substance. In terms of number of particles, so which is equals to 6.022 into 10 to the power 23 molecules. But in terms of volume, so this concept of mole in terms of volume works only for gases, not for solids and liquids. अगर हमें वॉल्यूम देखनी तो हम वॉल्यूम सिर्फ गैस की फाइंड आउट करेंगे. We never find the volume of any solid or any liquid. Okay, so 1 mole of any gas, जैसे कि number of particles in 1 mole of any substance is equals to 6.022 into 10 to the power 23 molecules. Similarly, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस की 1 मोल की कितनी वॉल्यूम होती है, इज ऑलवेज इक्वल्स टू 22.4 लीटर एट एसटीपी. हियर एसटीपी इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. ओके, सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के बारे में बाद में पढ़ेंगे. ओके, आई एक्सप्लेन यू अबाउट दिस लेटर ऑन, बट फॉर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 1 मोल ऑफ एनी गैस की वॉल्यूम, जैसे कि 1 मोल ऑफ एनी गैस का मास जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस. 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स. सिमिलरली 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस की वॉल्यूम किसके इक्वल होती है, 22.4. तो दो वैल्यू तो हमेशा फिक्स होती है. किसी भी 1 मोल की अगर तुम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल रहे हो तो वो हमेशा सेम होंगे, 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स. और अगर आप 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस का वॉल्यूम निकाल रहे हो तो इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 22.4 लीटर. ओके, now volume of one, अगर let's suppose if we are finding the volume of 1 mole of oxygen gas, तो 1 mole of oxygen gas मतलब 1 mole of oxygen मतलब molecular mass of oxygen. The molecular mass of oxygen is 18 gram. So 18 ग्राम की वॉल्यूम कितनी होगी, 22.4. तो स्टूडेंट्स जब भी क्वेश्चन करोगे तो हमेशा याद रखना कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन या फिर 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस की वॉल्यूम ऑब्वियसली 22.4 लीटर के इक्वल होगी. बट ये 22.4 लीटर जो है वो उस सब्सटेंस के कितने मास के इक्वल है, तो हमेशा याद रखना 1 मोल के इक्वल है. 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास कितना होता है, दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस. ओके, अगर प्रॉब्लम हो रही है या समझ नहीं आ रहा है ये चीज, तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी बाय क्वेश्चंस. ओके, so volume of 1 mole of any gas is equals to 22.4 liter at STP. तो अभी तक मैं पढ़ा चुकी हूँ 1 मोल मास ऑफ 1 मोल क्या होता है, ग्राम molecular mass in grams. Okay, we need to find the mass of 1 mole of any substance. It will always be equals to the molecular mass in gram. What are the number of particles in 1 mole of any substance, is always equals to 6.022 into 10 to the power 23 molecules. And volume of 1 mole of any substance is equals to 22.4 liter at STP. And it is applied only for gases, not for solids and liquids. Okay, so अभी तक मैं 3 चीजें पढ़ा चुकी हूँ. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को मास की टर्म्स में देखते हैं तो इट विल बी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 32 ग्राम. Now, number of molecules या number of particles या number of atoms in 1 mole of oxygen किसके इक्वल होंगे, 6.022 into 10 की पावर 23 molecules of oxygen. Okay, number of particles किसके इक्वल होते हैं, 1 mole of any substance, या फिर in case we are considering oxygen so it will be equal to 6.022 into 10 की पावर 23. and volume of 1 mole of oxygen क्या होगा, 22.4 liter at STP. Okay, तो मोल को मैंने ग्राम मॉलिक्यूलर मास के भी इक्वल हो सकता है, इसके इक्वल भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के इक्वल भी हो सकता है. एंड वॉल्यूम दैट इज 22.4 लीटर एट एसटीपी इफ गैस. मैंने यहाँ पर इफ गैस बहुत ही स्पेशली कंसिडर किया है क्योंकि
गैस के टर्म्स में ही मोल कंसेप्ट काम करता है. वॉल्यूम जो होगी वो सिर्फ गैस के टर्म्स में लगेगी, नॉट फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. So let's start with the very basic question of mole concept. What is the mass of 1 mole of ammonium carbonate? अमोनियम कार्बोनेट के 1 मोल का मास क्या होगा? तो मैंने क्या बताया, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस किसके इक्वल होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस. राइट स्टूडेंट्स, मैंने यही चीज बताई है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनियम कार्बोनेट निकालना पड़ेगा. तो अमोनियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए वी नीड टू नो the molecular formula of ammonium carbonate, which is equals to NH4 whole twice in CO3. This is the molecular formula of NH ammonium carbonate, that is NH4 whole twice CO3. Okay, so we need to find the molecular mass of NH4 whole twice CO3. For this, नाइट्रोजन हमें सारे मासेस, सारे एटम्स के मासेस दे रखे हैं. नाइट्रोजन के 1 एटम का मास होता है 14, ऑक्सीजन के 1 एटम का मास होता है 16, कार्बन के 1 एटम का मास होता है 12 एंड हाइड्रोजन के 1 एटम का मास होता है 1. So let's put the value in this formula. Here NH4 का होल ट्वाइस है, इसका मतलब ये जो 2 होगा वो दोनों एटम से मल्टीप्लाई होगा. तो इट विल बी 2 into, मैंने ब्रैकेट लगा लिया, NH4 अंदर NH4 की वैल्यू लिखी, N क्या होगा 14 plus next atom is H and there are 4 atoms of H, so it will be 4 into molecular mass of atomic mass of hydrogen is 1. Okay, प्लस यहाँ पे हर याद रखना, जब भी मॉलिक्यूलर मास निकालोगे जितने भी एटम्स होंगे वो सब प्लस होते जाएंगे, उनके मासेस को प्लस करके आंसर निकालना. ओके, यू डू नॉट नीड टू मल्टीप्लाई एनीथिंग, इट्स जस्ट ओनली डूइंग एडिशन. ओके, तो NH4 का होल ट्वाइस CO3 का मतलब क्या हुआ, हियर NH4 के दो NH4 के दो मॉलिक्यूल्स है, तो इट विल बी 2 हमने बाहर ले लिया इनटू NH4. तो NH4 मतलब N plus 4 into H, तो N 14 plus 4 into 1 plus C, कार्बन का है 12 plus there are 3 atoms of oxygen, so it will be 3 into 16. So on solving 2 into 14 का 14 ही रहेगा, plus 4 into 1 is 4 plus 12 plus 3 into 16 is 48. So 2 into 14 plus 4 is 18 plus 12 plus 48. Here 2 is multiplied by 18, it will becomes to be 36 plus 12 plus 48. So molecular mass of ammonium carbonate is equals to 96 gram. So mass of 1 mole of ammonium carbonate is equals to molecular mass of ammonium carbonate, that is 96 gram. This is the answer of this question. Next is calculate the number of moles in 140 gram of nitrogen gas and find its volume at STP. हमें number of moles निकालने हैं in 140 gram of nitrogen gas. Number of moles find out करने हैं in 140 gram of nitrogen gas. So and find its volume also. So we all know कि volume of 1 mole of any gas is equals to 22.4 liter. तो volume of 1 mole of nitrogen gas मतलब volume of 1 mole of nitrogen gas किसकी इक्वल होती है 22.4 लीटर एट STP. ओके, सो 1 मोल का मतलब क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस व्हिच इज इक्वल्स टू N2. तो इट हियर आर 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, so it will be 2 into 14, that is 28 gram. So we need to find the volume of 28 gram. Sorry, we do not need to find the volume of 28 gram, but हमें ये चीज पता है कि volume of 1 mole of nitrogen gas मतलब volume of 28 gram of nitrogen gas. 1 mole मतलब molecular mass of nitrogen gas which is equals to 28 gram. तो volume of 28 gram कितनी होती है 22.4 लीटर. तो हमें पता है कि volume of 28 gram of nitrogen gas 22.4 लीटर के इक्वल होगी. So we are using the unitary method. तो volume of 1 gram of nitrogen gas क्या होगा 22.4 upon 28. So volume of 140 gram of nitrogen gas is equals to 22.4 upon 28 into 140, which is equals to 112 liter at STP. ओके, समझ में आए कैसे किया है. देखो, हमें 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस की वॉल्यूम निकालनी, तो 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस की वॉल्यूम कैसे निकलेगी. वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर. तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस मतलब 1 मोल का मतलब क्या होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस विच इज इक्वल्स टू 28 ग्राम. तो वॉल्यूम ऑफ 28 ग्राम किसके इक्वल हो गई 22.4 लीटर. हमेशा याद रखना कि जो तुम नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेते हो उसी के ही मास
के इक्वल, मतलब उसके ही मास के नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल दो। अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस निकाल रहे हो तो 1 मोल का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे। क्लियर है ये चीज। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन गैस, मतलब 1 मोल नाइट्रोजन गैस का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट नाइट्रोजन गैस। तो मॉलिक्यूलर मास इज 28 ग्राम, तो इसका मतलब वो वॉल्यूम ऑफ 28 ग्राम कितना होता है नाइट्रोजन गैस, 22.42। तो 1 के लिए निकाला तो फिर 140 के लिए निकाल लिया। बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड वी गेट द आंसर इज 112 लीटर। Students, I left this question, rest of the question for you. You need to find the number of moles in 140 gram of nitrogen gas. So I think ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे बचा हुआ। मैंने इसकी वॉल्यूम निकाली, but I had not find out the number of moles in 140 gram of nitrogen gas. So you need to find out this. Okay? Number of moles या फिर कहो number of particles. ठीक है, ये अब आपके ऊपर है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे आप। I'll explain you, but you have to do it by yourself. I had not done in this video, so you have to first do this, then I'll explain you if you find any problem in it. Okay, thank you. In my next video you will be get to know more questions on mole concept from your book chapter itself. Okay, thank you.